आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। तेलंगाना हुकूमत अवामी उमंगों को पूरा करेगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किताबों की रस्मी इजराई तकारीब से किया खिताब। मजलिस अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ। बीजेपी हुकूमत अपने खामियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बयान। रियासत में 16 था 28 फरवरी दोबारा तबकाती सर्वे। पिछले सर्वे में हिस्सा ना लेने वालों से हुकूमत ने की खुसूसी अपील। मेडचल में दिन दहाड़े एक नौजवान पर हमला करते हुए कत्ल कर दिया गया। मुतल्लिका पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत अवामी उमंगों को पूरा करेगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हफ्ते को साबिक़ वज़ीर मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश टी देवेंद्र गौड़ की किताब विजया तेलंगाना और इतवार को साबिक़ डीजीपी और गवर्नर रामा मोहन राव की किताब गवर्नमेंट टू गवर्नर हाउस की रस्मी इजराई के बाद खिताब कर रहे थे। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के अलावा दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। పొలిటీషియన్స్ అనే కాదు, సమాజంలో ఉండే రాంగ్ ప్రెసిడెంట్స్ అన్నిటిని కూడా రోల్ మోడల్గా తీసుకుంటున్నట్టు అనిపిస్తుంది. ఈ మధ్యకాలంలో కొత్తగా సెలెక్ట్ అయిన ఐఏఎస్ ఐపీఎస్లు నేను చూస్తున్నా, ట్రైనింగ్లోనే ఉన్నప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్లకి వెళ్ళి డ్రెస్ వేసుకొని కూర్చొని సివిల్ పంచాయతీలు తెంచడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, విచ్ ఈజ్ అన్ఫార్చునేట్. ఐఎమ్ సారీ టు సే. నేను ఇందుకు ఈ వేదిక మీద పంచుకుంటున్నా అంటే కొద్ది మందిలో అయినా ఇది మార్పు రావాలి, ఆదర్శంగా ఉన్న వాళ్ళ గురించి చర్చ జరగాలి. అదేవిధంగా నేను జిల్లా పరిషత్ మెంబర్గా ఉన్నప్పుడు పెద్ద జిల్లా మహబూబ్ నగర్ జిల్లా అంటే వ్యాస్ట్, 14 మంది ఎమ్మెల్యేలు, అసలు ఒక పక్క నుంచి ఇంకో పక్కకు పోవాలంటే ఆ కాలంలో ఉండే అంబాసిడర్ కార్లు, చిన్న కార్లు, అలా 7-8-10 గంటలు జర్నీ. ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు వాళ్ళు అచ్చంపేట ఏరియాలో అడవుల్లో పోయి ఆదివాసీలను చెంచులను కలిసి మళ్ళీ ప్లెయిన్ ఏరియాస్కు రావాలంటే రోజుల కొద్దీ వాళ్ళు అక్కడ ఉండి చేసి ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి సమస్యల్ని కనుక్కొని పరిష్కరించేవాళ్ళు. లీడర్స్ కంటే కూడా ఆఫీసర్స్తో ప్రజలు మమేకమయ్యేవాళ్ళు, చెప్పుకునేవాళ్ళు, అరే మేము కలెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే మా ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిందని, లేకపోతే కలెక్టర్ మా దగ్గరకు వచ్చిండు, లేకపోతే మా గూడెంకి వచ్చి కలెక్టర్ గారు కూర్చొని మా సమస్యలు ఉన్నాడని గొప్పగా చెప్పుకునేవాళ్ళు. ఇప్పుడు నేను बीआरएस रुकन असम्बली श्रीनिवास यादव और बीआरएस रुकन खानसास कौंसिल के अलावा दीगर ने पीर के रोज़ सदर बीआरएस और साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सालगिरह तकरीब के इंतज़ामात का पार्टी ऑफिस तेलंगाना भवन में जायज़ा लिया। साबिक़ वज़ीर श्रीनिवास यादव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 17 फरवरी को सुबह 10 बजे साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सालगिरह के मौके पर बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामाराव केक काटेंगे। इसके अलावा रियासत भर में सालगिरह तकरीब का इनेकाद अमल में लाते हुए ब्लड डोनेशन कैंप कायम करने के अलावा दवाखानों में शरीक मरीज़ों में मेवेजात तकसीम करने के साथ साथ तमाम इबादत गाहों में KCR की दराज़ी उम्र के लिए दुआएं की जाएंगी। చాలా బ్రహ్మాండంగా కార్యకర్తలు కూడా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. దాంతోపాటు మన హాల్లో కూడా సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, మరి జానపద గీతాలు, తెలంగాణ పాటలు కూడా మా కళాకారులు బ్రహ్మాండంగా రేపు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి అందరూ కూడా వారి వారి నియోజకవర్గాల్లో వారి వారి డివిజన్లలో కార్యక్రమాలు నిర్వహించుకొని అందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున భవన్కు రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. అందరూ కూడా ఆహ్వానం చెప్తా ఉన్నాం. దాంతోపాటు మీడియా మిత్రులు, పాత్రికేయ మిత్రులు కూడా ఆహ్వానం తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే మా నాయకుని పుట్టినరోజు జరుపుకోవడం అనేది ఒక పండుగ వాతావరణంలో మా అందరి అదృష్టం. కార్యకర్తలకు, నాయకులకు
ముఖ్యులకు వారిని అభిమానించే వారికి అందరూ కూడా మరి ఎంతో ఆనందదాయకమైనటువంటి సందర్భం. గ్రామీణ ప్రాంతంలో రైతాంగం ఇప్పటికే 3-4 రోజుల నుంచి బ్రహ్మాండంగా వారి పుట్టినరోజు వేడుకల్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. వారందరూ కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తూ మరి రేపు ఉదయం మీ ఏరియాలో కార్యక్రమాలు చేసుకొని తెలంగాణ భవన్కు రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి అందరు ఆహ్వానితులే, అందరినీ కూడా మరి పెద్ద ఎత్తున बीआरएस रुकने पार्लियामेंट ई राजेंद्र ने एमएलसी इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए तालीम याफ्ता नौजवानों से अपील की है कि वो बीजेपी को तीनों कौंसिल की नशिस्तों पर कामयाब बनाएं। उन्होंने बताया कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक मुल्क की आवाम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर एतमाद करते हुए बीजेपी को मरकज़ और मुल्क की रियासतों में इख्तिदार हवाले कर रही है। उन्होंने दावा किया कि अनक़रीब रियासत में दरमियानी मुद्दत के इंतखाबात होंगे और बीजेपी तेलंगाना में भी इख्तिदार हासिल करेगी। रियासत भर में और ग्रेटर हैदराबाद में फरवरी के चौथे हफ्ते के आगाज़ के साथ ही गर्मी की शिद्दत और धूप की तपिश में इजाफा देखा जा रहा है। महकमे मौसमियात के ओहदेदारों ने बताया कि रियासत के 11 अजला में दर्जे हरारत 37 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ग्रेटर हैदराबाद के बशमुल रियासत के दीगर अजला में दर्जे हरारत 35 रिकॉर्ड किया गया, जिसकी वजह से शहर की शाराएँ सुनसान नजर आईं। ज़राए के मुताबिक माह मार्च में तेलंगाना भर में दर्जे हरारत 42 था 43 तक पहुंचने का इम्कान है और माह अप्रैल और मई में गर्मी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा होते हुए दर्जे हरारत 48 होने की क़यासाराई की गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है कि आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा की दस्तखत से 50 रुपये की नई नोट जारी की जाएगी और साथ ही मौजूदा 50 रुपये की नोटों के ताल्लुक़ से उन्होंने कहा कि आवाम को परेशान या उलझन का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है, ये नोट्स भी चलन में रहेंगे। शक्तिकांत दास की जगह पर मल्होत्रा ने दिसंबर 2024 में आरबीआई गवर्नर की नई जिम्मेदारी कबूल की है, जिसके बाद 50 रुपये की नई नोट मुतारफ़ करवाने का फ़ैसला किया गया। इन नोटों का डिज़ाइन महात्मा गांधी सीरीज़ के 50 रुपये के नोटों के मुमासिल रहेगा। हैदराबाद के जुड़वा शहरों समेत मुत्तहिदा नलगुंडा ज़िले के मुख्तलिफ देहातों को पीने का पानी फराहम करने वाले अकमपल्ली वेलसिंग रिजर्वायर में बड़ी तादाद में मुर्दा मुर्गियों की मौजूदगी से सनसनी फैल गई है। ये वाक़या उस वक्त मंजर-ए-आम पर आया जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई, जिसमें दिखाया गया है कि बड़ी तादाद में मुर्दा मुर्गियों को रिजर्वायर में फेंक दिया गया है। इस वीडियो के बाद मुकामी अवाम में शदीद तशवीश की लहर दौड़ गई, क्योंकि रिजर्वायर लाखों लोगों के पीने के पानी का अहम ज़रिया है। हालिया दिनों में बर्ड फ्लू, परिंदों में फैलने वाली ख़तरनाक बीमारी की खबरें गर्दिश कर रही हैं, जिसकी वजह से ये वाक़या मज़ीद खौफ व हिरास का बायस बन रहा है। मुकामी लोगों ने कहा कि अगर पानी आलूदा हो गया तो उससे सेहत पर संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं। हकाम ने कहा है कि मामले की मुकम्मल तहक़ीक़ात की जा रही है और पानी को साफ़ रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। रियासत में फास्टैग पर 17 फरवरी से नए रूल्स पर अमल आवारी होगी। अगर सार्फिन नए क़वानीन से बाखबर नहीं होंगे तो उन्हें यकीनन माली मुश्किलात का सामना करने पड़ेगा और इजाफी चार्जेस अदा करने होंगे। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने
فاسٹیگ بیلنس کی تصدیق سے متعلق قوانین کو تبدیل کر دیا ہے۔ نئے قوانین کے مطابق فاسٹیگ میں بیلنس کے حوالے سے چند تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ یہ صارفین کے لیے جاننا ضروری ہے، بصورت دیگر آپ مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ ہائی ویز کے ٹول گیٹس کے پاس ٹول کی ادائیگی مشکلات سے دوچار ہوگی، ڈبل چارجز ادا کرنا پڑیں گے۔ اگر فاسٹیگ کو وقت پر ریچارج نہیں کیا گیا تو اس سے بلیک لسٹ کر دیا جائے گا، جس کے بعد فاسٹیگ کی ادائیگیوں میں مسائل پیدا ہوں گے۔ سی پی آئی ریاستی سیکرٹری اور رکن اسمبلی کے ساما سوا راؤ نے کہا ہے کہ گریجویٹ ایم ایل سی انتخابات میں کانگریس کی تائید کا انہوں نے اعلان کیا۔ انتخابات میں جہاں سی پی آئی کی طاقت ہے وہاں تنہا مقابلہ مابقی مقامات پر کانگریس سے اتحاد کر کے مقابلے کا اعلان کیا ہے۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ساما سوا راؤ نے کہا کہ کونسل کی 3 نشستوں کے انتخابات ہو رہے ہیں۔ سی پی آئی نے گریجویٹ کوٹا کونسل انتخابات میں کانگریس کی تائید کا فیصلہ کیا ہے۔ ٹیچرز کوٹے کے 2 کونسل انتخابات کے لیے پارٹی میں مشاورت کر کے قطعی فیصلہ کرے گی۔ حکومت نے ایک بار پھر ریاست میں 16 تا 28 فروری تک ذات پات کا سروے کروانے کا فیصلہ کر کے تمام تیاریوں کو خطیت دے دی ہے۔ پہلے مرحلے کے سروے میں حصہ نہ لینے والوں کو ناموں اور تفصیلات کے اندراج کے لیے ایک اور موقع دیا گیا ہے۔ ناموں کے اندراج کے لیے ٹول فری نمبر 21111111 دیا گیا ہے۔ اس پر فون کر کے سروے میں حصہ لینے والے عملے کو اطلاع دینے کا موقع فراہم کیا گیا ہے۔ چیف سیکرٹری شانتی کماری نے آج ضلع کلکٹرز کے ساتھ ٹیلی کانفرنس کی، ذات پات کی مردم شماری کے تعلق سے مشورے اور تجاویز پیش کیے اور ٹول فری نمبر کا اعلان کیا۔ آن لائن فارمز ڈاؤن لوڈ کر کے عوام کو اپنی تفصیلات فراہم کرنے کا بھی موقع دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ منڈل پریشد آفس پہنچ کر بھی عوام تفصیلات درج کروا سکتی ہیں۔ حیدرآباد بی جے پی کے لیڈر این رام چندر راؤ نے غیر قانونی ہندوستانی تارکین وطن کو امریکہ سے امرتسر لے جانے والی پروازوں سے متعلق پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت مان کے بیان پر رد عمل دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ صرف ایک لینڈنگ کا معاملہ ہے۔ پنجاب حکومت کو خوش ہونا چاہیے کہ غیر قانونی تارکین وطن کو ملک منتقل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بھگونت مان کو ہیومن ٹریفک کے بڑھتے واقعات پر توجہ دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ of the American aircraft bringing here immigrants to Amritsar. It's just a matter where the facilitation of landing and the passengers who travel in it are the people who are close to those areas. They are generally landed somewhere there. There cannot be any political or any reason for defaming a particular state or a person or a party in that particular operation. I think the Aam Aadmi Party and the other leaders have lost the sense of identifying the issues on which the criticism has to be maintained. Every small thing now becomes a matter of criticism. The Punjab government should be happy that the people who have been migrated, who are illegally migrated to US, they are being brought to our country. And let us now think of their future and also investigate that how illegally they went there, who are the persons behind it. Instead of thinking of such issues of landing the flight here, landing the flight there, I don't think it is any tenable ground for any criticism of the government of India. Let us not make such issues a political issue.
and together find out who are the people who are sending these illegal immigrants and why the human trafficking is growing in these areas, especially in Punjab and nearby areas. And that has to be first investigated. Instead of making such statement, I think the Punjab Chief Minister should identify and should concentrate on how the human trafficking is increasing in his state. कुल हिंद सनती नुमाइश बड़ी तादाद में आवाम को राग़िब कर रही है। 3 जनवरी को शुरू हुई नुमाइश का 14 फरवरी तक 17,46,313 आवाम ने मुशाहिदा किया है। 15 फरवरी को ख़त्म होने वाली नुमाइश के लिए सोसाइटी की दरख्वास्त पर कमिश्नर पुलिस ने 17 फरवरी तक तौसी दी है। 1938 में नुमाइश का आगाज़ हुआ था। हर साल बड़े पैमाने पर नुमाइश का अहतमाम किया जा रहा है। नुमाइश में कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में तैयार अशिया व अंदरून मुल्क व बैरून मुमालिक की बेशुमार अशिया फ़रोख्त के लिए रखी गई हैं। इस मरतबा नुमाइश में तकरीबन 2000 स्टॉल्स लगाए गए हैं। इस साल कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल और तमिलनाडु के ताजिर भी नुमाइश का हिस्सा बने हैं। मरकज़ी ममलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय ने सनसनीखेज़ रिमार्क में कहा है कि तेलंगाना में मौजूद पाकिस्तानियों की तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए की जायदादों को तहवील में लेकर गरीब आवाम और किसानों में तकसीम किया जाएगा और सरकारी आमदनी बढ़ाई जाएगी। आज टूरिज़म प्लाज़ा में बंडी संजय ने मरकज़ी और रियासती हकाम का इजलास तलब करके एनिमाई प्रॉपर्टीज़ का जायज़ा लिया है, जिसके बाद मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में दुश्मन की जायदादों का जायज़ा लिया गया। अजला, रंगारेड्डी, हैदराबाद, कोत्तागुडम, विकाराबाद में कई नाजायज़ कब्ज़े हुए हैं, उन्हें किस तरह तहवील में लिया जाए। क़वायद के मुताबिक कब्ज़े पर रहने वाले आवाम लोगों और किसानों में तकसीम करने का मौका फराहम किया जाएगा। मजलिसी रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के सिलसिले में हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ में मरने वालों के रिश्तेदारों के साथ में मैं ताज़ियत करता हूँ। उन्होंने कहा कि ये काबिल ग्रीज़ सानहा था। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी हुकूमत पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। अपने एक्स हैंडल पर एमपी ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी हुकूमत जो कुछ हुआ उसे छुपाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मज़ीद मुतालबा किया कि सानहे की तहक़ीक़ात के लिए कोर्ट की निगरानी में एसआईटी की तक़र्री की जाए। उन्होंने महकमे रेलवे की मुबैना इंतज़ामी नाकामियों की आज़ादाना तहक़ीक़ात का भी मुतालबा किया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्क़ों में जारी तरक्याती कामों की तकमील के अलावा अवामी फलाह व बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा जाफ़र हुसैन मेराज ने कुरमागुड़ा डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों का पैदल दौरा करते हुए मुआयना किया। इन इलाक़ों में 38 लाख रुपये लागती तरक्याती काम जारी है, जिनकी तकमील के सिलसिले में मजलिसी रुकन असम्बली ने हिदायत जारी की। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर शिफात अली के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान और इब्तदाई सदूर व मोतमदीन भी मौजूद थे। ग्रुप ले लेंगे। कुरमागुड़ा डिवीजन याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी रेन बाजार गांधी के पुतले के बाजू के जितने भी यहाँ के बाइलेंस थे, छोटे रोड्स थे, उसका ऑलरेडी पहले
हमने सीवरेज का काम करवा दिया था। अब सीसी रोड का काम जो जुमला लागत 28 लाख रुपए की है, जिसमें तकरीबन हमने रोडों को मुकम्मल करने की कोशिश की और अल्लाह के फजल से काफ़ी रोड मुकम्मल हो गए। कुछ रोड और थोड़े से बाकी है। इंशाअल्लाह ताला हम ज़रूर ब-ज़रूर नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की निगरानी में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर बहुत जल्द इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद में वो रोडों का भी काम हम अल्लाह चाहे तो तकमील करा देंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पर आया था इंस्पेक्शन करने। मेरे साथ में मुकामी कारपोरेटर के अलावा मोहल्ले के तमाम लोग, अपना वतन भाई भी मेरे साथ में, हिंदू भाई भी साथ में है। उसके अलावा बस्ती के जितने हर घर से हर अफराद ने बाहर निकला, अपना न सिर्फ जमात का शुक्रिया अदा किया बल्कि काफ़ी तादाद में लोग गुलपोशी भी किए और यही कहे कि अल्लाह के फजल करम से ये तकरीबन रोड मुकम्मल हो गए हैं, जिसके लिए नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत का शुक्रिया भी अदा करे हैं। उसके साथ साथ हमारे पार्टी के यहाँ के पूरे ज़िम्मेदार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोतमदन एक्टिव वर्कर के साथ साथ यहाँ के सामने के भी जो जिम्मेदार है रेन बाज़ार गांधी के पुतले के अतराफ और नाते, वो लोग का भी बहुत बड़ा इसमें ताउन था। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने रात दिन मेहनत की है। यहाँ ठहर के रातों में रोड भी पड़ रही, तो उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके साथ साथ जो इतने लोग आज यहाँ पर बस्ती के मोहल्ले के आए हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हुए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला याकुतपुरा असम्बली कांस्टिट्यूंसी आने वाले टाइम के ऊपर हम हद्दुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं बेहतर से बेहतर काम करके एक मिसाली कांस्टिट्यूंसी बनाए। उसमें अल्लाह ने साथ दिया, इंशाअल्लाह 5 साल के वक्फे में अल्लाह चाहा तो याकुतपुरा असम्बली कांस्टिट्यूंसी एक मिसाली कांस्टिट्यूंसी बन जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मेडचल इलाके में पेश आए एक वाक़े में दिन दहाड़े एक नौजवान का हमला करते हुए क़त्ल कर दिया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 2 अफराद ने हमला करते हुए इसे मौत के घाट उतार दिया। मकतूल की शिनाख्त 25 साला उमेश की हैसियत से की गई है। ताहम इत्तला मिलते ही पुलिस ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर नाश को बगैर पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया और केस दर्ज कर लिया। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया में भी वायरल हुआ, जिसे देखकर अफसोस होता है कि दिन दहाड़े बेखौफ किस तरह हमला करते हुए इंसानी जान तल्फ की जा रही है। आंध्र प्रदेश में इतवार की सुबह एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक पालनाडु ज़िले के पेद्दानेमलीपुर इलाके में एक कार और लॉरी के दरमियान तसादुम हुआ, जिसमें एक ही ख़ानदान के 3 अफराद जहाँ बाख हो गए। हादसा उस वक्त पेश आया जब एक कार जो हैदराबाद से प्रकाशम ज़िले के मड्डीपादु जा रही थी, एक गैस टैंकर बेकाबू होकर कार पर उलट गया, जिसके नतीजे में कार में सफ़र कर रहे माँ और 2 जवान बेटे मौके पर ही जाँ बाख हो गए। मुतल्लिक़ा पुलिस ने इस हादसे के सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। जुबली हिल्स में एक कार ने चेकपोस्ट चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस बूथ को टक्कर दे दी। ताहम इस वक्त बूथ में कोई मौजूद नहीं था। बताया जाता है कि एक तेज़ रफ्तार BMW कार ने जुबली चेकपोस्ट से गुजरने के दौरान बूथ को टक्कर दे दी। हादसे के फौरी बाद ड्राइवर फरार हो गया। इत्तला के साथ पुलिस ने फौरी जमीयत के साथ पहुंचकर चौराहे से गाड़ी को हटा दिया और इस मसरूफ़ तरीन चौराहे पर ट्रैफिक जाम होने नहीं दी। हैदराबाद के पुराने शहर के IAS सदन में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पिलर बनाने के लिए खोदे गए गड्ढे में एक लड़का गिरकर हलाक हो गया। बताया जाता है कि लड़का घर में खेल रहा था। घर के करीब तामीराती मुकाम पर पहुंचा और खेलते हुए पानी से भरे गड्ढे में गिर गया। मुकामी लोगों ने लड़के को गड्ढे से बाहर निकाला, करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि हॉस्पिटल पहुंचने से कबल ही लड़के की मौत हो गई थी। लड़के के वालिदैन श्रीनु नायक और अनुषा का ताल्लुक़ ज़िले रंगारेड्डी के मोदोगुला मंडल से बताया गया है।
تلنگانہ ضلع کے سنگاریڈی کے ظہیرآباد میں چوروں نے ATM سے رقم لوٹ لی۔ قصبے کے بھوانی مندر کے روبرو واقع SBI کے ATM سینٹر میں چوروں نے آدھی رات کو داخل ہو کر ATM مشین کو توڑ ڈالا۔ انہوں نے ATM مشین کو کٹر اور لوہے کی سلاخوں سے توڑا اور 2.5 لاکھ روپے کی نقدی کا سرقہ کر لیا۔ مقامی لوگوں کی شکایت پر پولیس نے فوری جائے وقوع کا معائنہ کیا اور CCTV کیمرے میں ریکارڈ کی گئی فوٹیج کی بنیاد پر سارقوں کو پکڑنے کی کوشش شروع کر دی گئی ہے۔ العارف اکھاڑے کی نمائندگی کرنے والے سید حمزہ پہلوان نے پربھنی میں منعقدہ کشتی مقابلوں میں حصہ لیتے ہوئے شاندار مظاہرہ کیا ہے۔ حمزہ پہلوان نے 70 کلو کے زمرے میں شاندار مقابلہ کرتے ہوئے آگے والے پہلوان کو شکست دے دی۔ حمزہ پہلوان سید نجم الدین قادری پہلوان کے فرزند ہے۔ اکھاڑے کی جانب سے حمزہ پہلوان کو مبارکباد دی گئی ہے۔ اس موقع پر اکھاڑے کے استاد کے علاوہ دیگر پہلوانوں کو بھی تہنیت پیش کی گئی اور جشن منایا گیا۔ آخر میں دیکھیں گے سرخیاں ایک بار پھر۔ تلنگانہ حکومت عوامی امنگوں کو پورا کرے گی، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کتابوں کی رسمی اجرائی تقاریب سے کیا خطاب۔ مجلسی اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں جاری ترقیاتی کاموں اور عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں مصروف۔ BJP حکومت اپنے خامیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے، نئی دہلی ریلوے اسٹیشن بھگدڑ پر صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی کا بیان۔ ریاست میں 16 تا 28 فروری دوبارہ طبقاتی سروے، پچھلے سروے میں حصہ نہ لینے والوں سے حکومت نے کی خصوصی اپیل۔ میڈچل میں دن دہاڑے ایک نوجوان پر حملہ کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا، متعلقہ پولیس مصروف تحقیقات۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔